Hello, good evening, guys. Welcome to another episode of the Uncapped Indians, the 60th match that took place between Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians at Eden Gardens. Kolkata Knight Riders has won again, and this time by 18 runs. Obviously, the game was cut short by to 16 overs because of a rain delay. Um, Mumbai won the toss. They put Kolkata to bat first, and Kolkata managed 157. Mumbai Indians really could not chase it. Uh, यार अंकित, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुंबई इंडियंस का क्या सीन है? Yeah, Doril, I feel like it's all about leadership quality. यहाँ तक नाउ एबी डिविलियर्स ने भी बोल दिया कि इनकी कैप्टनसी का स्टाइल थोड़ा ब्रवाडो है. ऑन एयर केविन पीटरसन बोलते हैं स्माइलिंग टू मच. ही इज नॉट एबल टू हैंडल आई मीन एबी डिविलियर्स ने बोला ही इज नॉट एबल टू हैंडल द एक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस पीपल इन सेट्स ऑफ मुंबई इंडियंस, जो कि वो यंग जीटी को हैंडल किया था उन्होंने. सो ये मेरे को लगता है इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप. व्हाट डू यू फील लाइक? नहीं, मैंने ना एक आर्टिकल, एक नहीं काफी सारे न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ा था कि देयर आर जेन्युइन सोर्सेस दैट से दैट देयर आर टू फैक्शंस इन मुंबई इंडियंस, कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट इज बीइंग शोन. उसके अलावा अगर आप देखो तो उसने तिलक वर्मा को ओपनली ब्लेम किया था कि लेफ्ट या लेफ्ट आर्म या को या करना चाहिए था. ही वाज वेरी एनिमेटेड व्हेन दे कुड नॉट कंट्रोल जेएफएम इन द डीसी गेम. We saw videos of players going to Rohit Sharma for advice while bowling. So all of this sort of plays a part. Apart from that, Tilak Verma is the 13th highest run scorer in the entire IPL, जो मुंबई के लिए फर्स्ट है. आपका फर्स्ट बेस्ट बैट्समैन 13, ठीक है. आपके पावर हिटर्स नहीं चल रहे हैं. Romara Shepherd, Tim David did not really play. Your bowling is very, very weak. Apart from Jasprit Bumrah, your spinners have not contributed at all. Um, the top order has also not performed really, really well there. Um, so yeah, that's all in all for Mumbai. I think they need to come back next year a little more stronger, a little more decisive in decision making. And if Hardik Pandya is to continue the captain, I think there are certain styles that he will have to adopt on how the team plays rather than everyone adopting to him. Um, या अग्रीड. since I'm talking about Mumbai's batting, Rohit Sharma. Rohit Sharma form is very important for us. Coming, the World Cup, it's really, really crucial for India. लास्ट 5 मैचेस देखो आप, उन्होंने कुछ स्कोर नहीं किया. एंड 2 बार उसमें इम्पैक्ट सब भी आए हैं क्योंकि उनके आई थिंक पीस वाला ने बोला उनके बैक में स्टेप है. तो या आई मीन दिस इज कंसर्न फॉर अस. और उन्होंने इंडिया को जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेला था, 50 ओवर्स के फॉर्मेट में, वी नीड दैट काइंड ऑफ रोहित शर्मा for coming World Cup. Otherwise, it will be very difficult for us. He's going to open for India. So we need, that old Rohit Sharma back in form. And it's just one click away. Rohit Sharma ने 100 मारा, ठीक है, जो विनिंग कॉज में नहीं आया, नो प्रॉब्लम. बट रोहित शर्मा को बस एक एक मैच की जरूरत है. एंड देयर इज नो लुकिंग बैक. आई हैव फेथ ऑन रोहित शर्मा. ही विल डेफिनेटली बाउंस बैक. बट yes, people are started, talking about his form, Yeah. which is not great sign. Yeah. क्योंकि यार ऐसा है ना कि रोहित शर्मा ने जब 2023 वर्ल्ड कप हारा था तो हमें बहुत बुरा लगा था रोहित शर्मा के लिए, कि Yeah, उसने बोला कि मेरा सपना है कि मैं एक वर्ल्ड कप उठाऊं. 2011 की वो टीम में सिलेक्ट भी नहीं हुए थे. एंड अब जब 2024 में हमारे पास एक और चांस है, एंड रोहित शर्मा इज गोइंग टू ओपन, ही इज गोइंग टू बी द वन हु इज गोइंग टू स्टार्ट द ट्रेंड. ही इज गोइंग टू yeah, गो बैम बैम बैम. एंड इफ ही गिव्स अस दैट स्टार्ट लाइक हाउ ही gave in almost all matches in the World Cup, then India have a very, very definitive chance. So all of us are thoroughly praying that Rohit Sharma comes back to form because he yeah, wants to absolutely. We lift want Rohit Sharma that back in World form. Cup. Yeah, Yeah, agreed, we agreed. definitely want him in form. Uh, I'm very impressed with the way. अरे आज एक और एक चीज हो गया यार, सुनील नारायण जीरो पे आउट हो गया. देखा आपने? Why? It was a brain fade movement. It was a हाँ. brain fade movement. Same एक ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी हुआ था बीबीएल में. I don't remember the bowler. सुनील नारायण को पता ही नहीं चले बॉल कब आई. देख, वो बुमराह ऐसा बॉलर है ना, ये तो वो टारगेट विल बी अ टो और हेड. हाँ, दीज टू head. फॉर सुनील नारायण. हेड एंड टो. और वो टो पे आ गई. सुनील नारायण बैट ऐसे पकड़ा ही रहेगा. दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. आई थॉट फ्रॉम फ्रॉम देयर दे गॉट द मोमेंटम एक्चुअली. Yeah, yeah. या
सो या, बट वही है कि कुछ चीजें फेवर्स में नहीं जा रही हैं एमआई के, हम्म, हम्म। एंड और विल टॉक अबाउट आल्सो इज द रीजन। हाँ, और उसमें आए हैं आपके वेंकटेश अय्यर, मतलब जहाँ पे सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम ईशान किशन ऑफ कोर्स, आई थिंक वेंकटेश अय्यर was someone who really played a good innings. I'm very happy to see him play such a good innings. He's also one of the biggest prospects of the Indian team. He's an excellent red ball cricketer also. We've Krishna has spoken about him in the past about his entire journey. So very happy for him. नीतीश राणा क्या लगता है, कमबैक किया उन्होंने, वाइस कप्तान है टीम के? भाई बिल्कुल कम बैक किया है ना, जब सिचुएशन एकदम क्रंच थी, ही प्लेड अ एंकर रोल हम्म, from the other end and he हम्म, rotated the strike as well. So हम्म, I feel happy, last year बेचारा वो टीम को लीड कर रहा था. This time they have so much of competition within the playing 11. yeah, He is not able to make in that playing 11. But today yeah. he got the chance and he showed he still have, if you need him, he will come up and he will provide the kind of partnership between the wickets. So अगर वो yeah, फिफ्टी Nitesh Rana. फिफ्टी वगैरह 50 वगैरह मारेगा तो ऐसा करेगा क्या वापस, वो बैट से ऐसा धूल उठा रहा है, पता है ना आपने उससे किया था Yeah, yeah. यश यश धूल धुल के के लिए लिए? किया तो वो थोड़ा सा मेरे को ओवर द टॉप ठीक है. लगा क्योंकि यश धूल बहुत यंग है, मतलब थोड़ा सा यंग है। यश धूल ने भी एक रील बनाया था ऐसे करके, तो वो भी था थोड़ा, बट या It was a nice banter. या अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ना थोड़ा सा मेरे को कंसर्न नहीं शायद ही केकेआर की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच के हर चीज करते हैं। रिंकू सिंह को थोड़ा सा ऊपर भेज सकते थे, हल्का सा मे बी, टू सॉर्ट ऑफ गेट हिम इनटू दैट बैटिंग फॉर्म बिफोर क्वालिफायर्स, थोड़ा सा ऊपर लाते तो मेरे हिसाब से बेटर होता। Correct. Mumbai Indians, apart from Anshul Kamboj, who's really impressed, and Jasprit Bumrah, who always impresses, Hardik Pandya's economy was 10.66 today without any wickets. Again, a concern for India. नहीं यार, ठीक है बॉलिंग यार, लास्ट तीन तीन मैचेस से विकेट निकाल रहा है, ठीक है आज नहीं चला, जहाँ पे सारे बॉलर पिट रहे हैं यार. आई डोंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट हिज बॉलिंग. Mm. So yeah, that's absolutely fine. But he need to strike with the bat, which is a very important for us. Yeah. Yeah, and he will. I'm pretty much sure when he will wear that blue jersey. Absolutely, he's wearing the blue jersey with a golden Mm. feather. But Mm. when he will wear the blue jersey along with the orange color, probably yes, he will step And up. Rohit Sharma, the captain, being there. Correct, But correct. अगर आप हार्दिक पांड्या को क्या रोल दोगे इंडियन टीम में एज अ बैट्समैन? कि आप फिनिशर हो, आप मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर हो, या फिर आप वो हो जो क्विक विकेट्स गिरने के बाद एक मोमेंट मतलब आते हैं और फिर सीधा मोमेंटम कैरी कर? व्हाट रोल वुड यू लाइक टू गिव? Looking the past records for the Hardik Pandya, yes, आके आप clutch. He's a clutch player for India team. For an India team, he's a clutch player. He will come and he will give the boost at the end. For me, yes, he will come in the lower order and he will boost the scorecard for Team India. But yes, if the situation is crunch, I would love to have him up the order and to वो partnership बनाए. अच्छा. And he एक has done थोड़ा, in past. हाँ, एक थोड़ा सा एक मोमेंट आ गया था मैच में जिसमें निहाल वधेरा और ये तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे थे, तो तिलक वर्मा ने लास्ट बॉल पे 2 रन लिए और निहाल वधेरा आउट हो गए, और निहाल वधेरा वाज रियली वेरी फ्यूरियस एट तिलक वर्मा की, यार मैं भी स्ट्राइक कर सकता हूँ, सिर्फ तू स्ट्राइक नहीं कर सकता। एंड आई थिंक वहां पे थोड़ा मैच चेंज हो गया क्योंकि उस बाद नमनदीप ने 6 बॉल में 17 मारे, तो शायद अगर निहाल वधेरा अभी भी होते ना तो वो कर देते। और यहाँ पे ना थोड़ा सा दिखता है आपको मेंटेनेंस का कि एक दूसरे में जो बिलीफ होता है ना, यार जैसे कोहली ने किया कि मैं अब नहीं सोचता कि अगर मैं आउट हो गया तो बाकी क्या करेंगे, Yeah. तो बताया कि मैं देख लेता हूँ, ठीक है। यहीं पे शायद वो एक टीम कॉम्बिनेशन होता है, यार मुझे पता है कि निहाल वधेरा की स्ट्रेंथ क्या है, वो खेल सकता है, अगर वहां पे तिलक वर्मा थोड़ा उन्हें बैक कर देते ना, देन आई थिंक इट वुड हैव मेड अ लोड ऑफ डिफरेंस। बट सुनील नारायण चाहे 0 पे आउट हो जाए, उनके पास एक और वेपन है, वो हाथ पीछे करके आते हैं ऐसे, मैं नहीं दिखाऊंगा, 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, अपना काम करके थैंक यू वेरी मच। तो आज 16 ओवर का मैच नहीं था, आज 13 ओवर 13 का। ओवर का मैच. हमने पहले भी डिस्कस किया है ये चीजें हाँ, कि सुनील हाँ, नारायण है. आप अगर 20 ओवर का मैच है तो आप भूल जाइए कि आपके पास 20 ओवर है, आपके पास 16 ओवर ही है. अगर हम्म, आप 16 ओवर है तो आपके पास 13 ओवर है, वो कंसीडर कर हम्म। लेना चाहिए था मुंबई इंडियंस को. और वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में
17 रन नहीं है 4.25 की इकोनॉमी पे। भाई ये क्या आदमी है यार। I'll tell you, there is a reason behind Sunil Narayan का इनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. That's the reason, Varun Chakraborty is giving the too much breakthrough. हम्म, है, देख अच्छी बॉलिंग है, there's no doubt, but when you have a that kind of backup as a spinner, the other end, you will get a confidence. आपको हम्म, कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर ये सामने वाला इतना करके दे रहा है, then I have to also provide the same. हम्म, And यार एक्सपीरियंस, सुनील नारायण डेफिनेटली शेयर करते होंगे वरुण चक्रवर्ती के साथ. हम्म। So what I feel like, he's a genuine great bowler, no doubt. But ये वो होता है यार, खरबूजे आई को देख थिंक के खरबूजा रंग बदलता है. पर आई थिंक यहाँ पे ना केकेआर जीत जाता है, पता है उनके पास बहुत लोग उन मिचेल स्टार्क 11 की इकोनॉमी पे गए, हर्षित राणा 11 की इकोनॉमी पे गए, आंद्रे रसल 11 की इकोनॉमी पे गए, कौन 11 की इकोनॉमी पे नहीं गया है? दो स्पिनर और वैभव अरोरा। मैं बोल रहा तो हूँ. इसलिए मैंने ये कल भी जब मैं अकेला पॉडकास्ट कर रहा था, जब हम नहीं आए, तो तब भी मैंने ये बोला था कि ये किसी का भी गेम है। अब चाहे छोटी टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, बड़ी टीम छोटी टीम कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी को भी हरा सकता या अग्रीड, अग्रीड. है ना? छोटी इट्स टीम बड़ी टीम, हाँ कोई भी टीम हो कुछ यार। याद आया? छोटी टीम बड़ी टीम से कुछ याद आया? अरे हाँ, अरे उससे एक चीज याद आई मेरे को। अरे पॉल स्टर्लिंग ना आयरलैंड का कैप्टन है, ठीक है, उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल दिया कि हमें लगा पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो फ्लैटेस्ट विकेट में खेल के आते हैं, तो हमें देखना था कि वो यहाँ पे क्या खेलते हैं, अगर यहाँ पे 180 बनाए तो हम तो चेस कर ही सकते या यार ये ठीक है यार, उसमें उन्होंने डिग आउट किया. बट हैविंग दे हैव अ ग्रेट बॉलर्स लाइक नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी. डोंट टेक विन. मैं एज अ इंडियन मैं लाइटली नहीं लूंगा वो टीम. ऐसी टीम को कभी लाइटली लेना नहीं चाहिए, वो कभी बाउंस बैक कर जाएंगे. एंड दे हैव स्ट्रेंथ विद देयर ओन बॉलिंग. और ये अभी से नहीं, बहुत फास्ट से चला रहा है शोएब अख्तर, वसीम अकरम. वो अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत जाने गए. वो ठीक है, उनका सितारा थोड़ा गर्दिश में है, वो नहीं साथ दे रहा है. दे हैं। हैव मेरा नेक्स्ट सीरीज मेरे विद को भी इंग्लैंड आल्सो. दे हैव हाँ, नेक्स्ट सीरीज विद इंग्लैंड मेरे आल्सो. को भी यही ख्याल है, पता है, अगर आप बोल रहे हो कि वो फ्लैटेस्ट विकेट से आते हैं, तो अब शाहीन शाह अफरीदी को कैसे करोगे? अब मोहम्मद कैसे, आमिर के वही बारे तो. में क्या बोलोगे? अब नसीम शाह के बारे में क्या बोलोगे? अच्छा ये छोड़ाओ, या वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस के बारे में क्या बोलोगे? मतलब अगर फ्लैट वही विकेट वही. भी है तो इतने चैंपियन बॉलर कहाँ से लेके आया वो? इसका मतलब या उनके फास्ट बॉलिंग लेवल अलग है। और उनके दे पास हैव. सकलेन मुश्ताक था एक टाइम पे। या और हाँ, फ्लैट सो विकेट दे पे स्पिन हैड, नहीं होता है. हाँ, एंड सकलीन मुश्ताक टेक्निकली इन्वेंटेड द दूसरा। अब मुरली को या दूसरा क्रेडिट देते हो, टेक इट, बट मुरलीधरन ने भी सकलीन मुश्ताक से ही दूसरा सीखा है। करेक्ट, करेक्ट. सो एंड ही हैज गिवन द क्रेडिट आल्सो. हाँ, तो आयरलैंड को ना थोड़ा आराम से सीखे, हाँ, आराम से। बहुत बड़ा टीम तीन है वो। मैच का सीरीज है. तीन मैच का हाँ, सीरीज है. दे नीड टू वेट. बॉब्जी द वो किंग है इज एक्चुअली अ गुड बैट्समैन। यार. बॉबी द किंग का क्या ही बोलने का यार, वो रना बॉल खेल रहा है, पता है, इसमें बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग रना बॉल. इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड फॉर द wherein Saim Ayub is playing, you know uh, with a ball 45 runs. बहुत अच्छा शॉट मारा यार साइम अयूब ने. साइम अयूब को पता है देखना इस बार वर्ल्ड कप में. बट फास्ट बॉलर से मुझे याद आया, Brendan McCullum, the coach of the English cricket team, had flown down to England and sort of asked Jimmy Anderson that will he be able to survive till the next Ashes, because he want a younger bowler to have. Jimmy Anderson will be retiring at the age of 41 at the iconic Lord's Stadium. Jimmy Anderson has the highest test wickets by a fast bowler, which is 700. He's the second most wicket taker after the age of 35, first one being Rangana Herath. He is also the second most wicket taker in Asia after Dale Steyn. उसने पुजारा को 12 बार आउट किया है, वार्नर को 10 बार आउट किया है, सचिन को 9 बार, विलियमसन को 9 बार, स्मिथ को 8 बार और कोहली को 7 बार. 7 उसके बार. अलावा he also holds an English record of not getting a duck in 54 innings. और 2009 के एक कार्डिफ के मैच में उसने 69 मिनट्स तक बैटिंग किया है. हाँ मतलब जिमी एंडरसन, I remember Jimmy Anderson always being that man जो हर एक आइकॉनिक टेस्ट मैच में या तो स्ट्राइकर पे होता है तो नॉन स्ट्राइक एंड पे होता है. बट Jimmy Anderson with his control on the Duke's ball, especially in swing, out swing, reverse swing, जो मजा आता था ना. So finally, if Mitchell Johnson
once said that why are you not chirping? You're not getting wickets. I think Jimmy Anderson has gone back and told I took 700 wickets. So excellent career for Jimmy Anderson. I will dearly miss him. और जब भी वो ऐसा विकेट लेता था ना पूरा इंग्लिश ऐसा करता था. बट रिसेंट टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और सबने मिलकर रिटायर करा ही दिया में एंडरसन को. I mean, तो sir, या आई मीन Jeffrey Bacot से इसको यार कॉम्प्लीमेंट मिला है कि गॉड का उसके ऊपर हाथ है, he can swing orange also. हाँ, और जेफरी बैकवर्ड इतना तारीफ नहीं करता है सबका, वो जल्दी एकदम नहीं करता. He's kind of so critic. Yeah, he's a kind of critic. He bash everyone. उसने सचिन के बारे में बीच में कुछ बोला था, बट हाँ. सचिन तेंदुलकर. बट कल है बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस एटलीस्ट फॉर 3 teams, and first team that is playing is CSK versus Rajasthan Royals. Rajasthan Royals has almost qualified. CSK needs to win to qualify. The advantage that CSK has right now is that it's playing at Chennai. It's not always been their home advantage this IPL, but what do you think, Akhil? CSK versus RR, Samson versus Gaikwad or slash Dhoni? Talking about their batting, they need that kind of knock from Daryl Mitchell and Moeen Ali. So yes, those two are in. I think they got their form. मेरे को एक सवाल है, सॉरी, मेरे को एक सवाल है बीच में याद है. मोइन अली सीएसके की टीम में जब होता है तो फील्डिंग क्यों ठीक से नहीं करता वो? वो 2-3 आईपीएल से देखा है, पता है मैंने. भाई वो इंग्लैंड में भी ऐसा ही था. कुछ भी टेस्ट मैच भी हो जाए, T20 हो जाए, आरसीबी में था तो भी वैसे ही था, क्योंकि वो है उसका थोड़ा फील्डिंग में हाथ तंग है उसका. But having said that, Shivam Dube's knock is due. Probably tomorrow we can see Shivam Dube striking. And Rahane, I don't know यार, वो openings क्यों आ रहे हैं, I don't know. It's their decision. They have backed their player and they have performed in past also. So yeah, coming to their bowling, यार वो एक concern है. Bowling वहीं पे वो, I think they will. नहीं है, फिजूर नहीं है. फिजूर वहाँ पे पैर ढा रहा है. हाँ, ले रहा है. वहां भी उसने बोला कि धोनी भाई ने मुझे फिर याद आया बांग्लादेश में. This is not the CSK post match presentation. भाई नहीं है. But I want Sanju Samson to play tomorrow because the World Cup is nearing. I want Yuzvendra Chahal to take wickets and I want Yashasvi Jaiswal to play. That means I want Rajasthan Royals to win solely looking at the World Cup and Shivam Dube to play a good knock. At least if tomorrow Shivam Dube can bowl, nothing like that, that means we have great bowling options. The second match is a do or die for both teams. It's Royal Challengers Bangalore versus the Deccan Chargers. It's going to be Delhi Capitals, Mohammad Siraj versus JFM. Having said that, they got a new. Rishabh Pant is not playing due to the big blow by IPL committee because of slow over rate. तो वो एक शायद वो कैप्टनशिप जो है ना वो खलेगी. जो भी कल लीडरशिप लेता है, I think you can see David Warner playing tomorrow. You never know. Yeah, to have that experience in this thing. Correct. And Abhishek Porel probably keeps the wicket for DC. Absolutely. Yeah. And David Warner is the IPL champion. उसने जिताया है एसआरएच को. बोला है उसने ब्लॉक कर दिया है. हाँ, नहीं उसने बोला भी है कि एसआरएच ने मेरे को अच्छा वो ब्लॉक कर दिया है हर सोशल मीडिया पे, बट मैंने ही जिताया है उस टीम को. सो या उसको ब्लॉक कर दिया सोशल मीडिया से. Yes. I didn't know this. Yeah, he said that. Or Virat Kohli is in form. And who else? Swapnil Singh is our man. We need a wicket in a power play by Swapnil Singh. कल अक्षर पटेल के सामने स्लॉक स्वीप निकलेगा ना? स्लॉक स्वीप निकलना चाहिए, नहीं तो रजत पाटीदार है यार. रजत पाटीदार ने स्टेटमेंट दिया, भाई आप लोग मेरे को ये मत बोलो कि सिर्फ मैं स्पिन अच्छा खेलता हूँ. आई लव टू फेस अ फास्ट बॉलिंग ऑल्सो. उसको सबने बोला स्पिन इज ग्रेट. मेरे को भी लगता था पता है कि वो स्पिन बहुत अच्छा खेलता है, बट नहीं वो फास्ट यार वो लेजेंड बैट्समैन. उसने एमपी को बहुत मतलब वो रणजी ट्रॉफी में उसकी इनिंग्स देखो ना, वो बहुत तगड़ा खेलता है. बहुत क्या वो मेरे को आज तक नया टर्म आया है, चाबुक बैटिंग करता है. चाबुक बैटिंग करता है. चल
So yeah, Great matches tomorrow. The middle order that is there on the points table is going to be shifted. Tectonic shift shall happen in that. A lot of teams will see what is going to happen. With middle order, I always remember Lucknow Super Giants. I feel for KL Rahul, and if KL Rahul ever listens to this podcast, please let him know that we are there for him. In the end, yeah, इंडिया में आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, क्रिकेटर चाहे कितना भी बड़ा छोटा मीडियम हो, सब लोग क्रिकेटर की तरफ ही रहेंगे because they give us more genuine happiness than any other commercial product that can ever give us. So hopefully KL Rahul comes back faster, and everybody wants KL Rahul to be in Royal Challengers Bangalore. KL Rahul also wants to be in Royal Challengers Bangalore because he wanted to Karnataka. finish his journey. Yeah, he said that in I think some interview he wanted to represent Royal Challengers Bangalore because he comes from that particular place, and he has I think वो खेला भी है आरसीबी से यार, ऐसा नहीं है अगले आईपीएल में अगर फाइनल में आरसीबी वर्सेस एलएसजी हो जाए, आरसीबी की तरफ से केएल राहुल है, एलएसजी का कोई एक्सवाइजेड कैप्टन है और आरसीबी जीत जाता है, तो मजा है। यार मेरे को लग रहा है इसी साल में पूछ गया यार, एवरीथिंग इज गोइंग बाय देयर प्लान। अरे कल ऋषभ पंत नहीं खेल रहा, इससे बड़ा क्या सीन है यार, कैप्टन ही नहीं खेल रहा है सामने वाली टीम का। ठीक है, ओके ओके, I will not lose hope. I want you to have hope. I see you smiling now and RCB playing well, and I like that. I really like dark horses and underdog teams. I'm not saying it's a bad team. I'm just saying it's underdog right now. So yeah. बट 17th ईयर में जीतेगी तो अच्छा होगा ना, 7 फॉर अ रीजन, फिर सीएसके फैंस भी खुश हो जाएंगे कि थाला फॉर अ रीजन, 7 फॉर अ रीजन, 17th एडिशन जिताया हमने। Great. Okay. Thank you very much for joining us in this podcast. You've been lovely on Instagram. We're also on X. We're on YouTube, of course. Please like, share, and subscribe. We're also on Facebook. And we shall see you after tomorrow's match. Great. Good night. Take care. Good night. Thank you so much.